all humans are equal बैठे हैं बड़ी देर के। जी सर। अच्छा, मेरा आर्गुमेंट्स थोड़ा मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया, तो देखते हैं कि ये हेल्प करता है या नहीं। ओके, लेट्स टेक यू ओनली, राइट, हैरिस सुल्तान। ओके, नाउ यू नो सेट थ्योरी, राइट? बेसिक सेट तो पता है, सेट थ्योरी आपको, सेट्स एंड एलिमेंट्स, राइट? So let's say I don't remember it. I actually don't remember it. yeah, nothing complicated. Okay, so if I take all the elements in Harris में जो भी elements हैं, जैसे मैंने एक सेट बनाया, सेट वन। सेट वन में मैंने सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन सारे डाल दिए उसमें। ओके, Right. सेट वन हैज ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, वो सेट वन हो गया। सेट टू में मैंने आपके दिमाग में सारे थॉट्स जो चल रहे हैं, एप्पल का थॉट, बनाना का थॉट, जो भी है थॉट, सारे थॉट्स डाल दिए, ठीक है, दैट इज सेट टू। सेट टू इज सेट ऑफ ऑल थॉट्स, ठीक है। नाउ एक और सेट थ्री। सेट थ्री में ना एक ही एलिमेंट रखता हूं मैं, सो दैट इज जैसे इफ आई से, अगर आप एप्पल का थॉट सोच रहे हो ना, आई कांट से दैट एप्पल का थॉट इज हैरिस, राइट? हैरिस इज द एंटिटी हु इज एक्सपीरियंसिंग द थॉट ऑफ एन एप्पल। तो सिमिलरली एक सो आई एम ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस थॉट एंड कॉन्शियस सब्जेक्ट। दोनों में फर्क है। नॉर्मली people think both are same, but they are different. Conscious thought, I don't know anyone who says that both are same. We know Okay, that conscious thought is different. यही तो सारा प्रॉब्लम है सर, आप इतनी लंबी बात करके वहीं पे आ जाती जो हमें पता होती है। तो या तो कॉन्शियस थॉट और कॉन्शियस सब्जेक्ट। कॉन्शियस सब्जेक्ट इज एंटिटी जो सारे चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, विच आर इन सेट टू। ओके, नाउ प्रॉब्लम आती है कि सेट वन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, क्योंकि अब जब भी हम खाते हो ना, जब भी आप खाते हो पीते हो, Yeah, things are going in and out. Yes, yes. सेट वन इज कांस्टेंट फ्लक्स। ओके, सेकंड इज सेट ऑफ थॉट्स, वो भी कांस्टेंट फ्लक्स में, क्योंकि सुबह से शाम तक योर थॉट्स आर चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ओके, और तीसरी होते हैं कॉन्शियस सब्जेक्ट। दैट कॉन्शियस सब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंसिंग ऑल द थॉट्स, मॉर्निंग इवनिंग, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे इफ यू आर ईटिंग, अगर आप एप्पल खा रहे हो या म्यूजिक सुन रहे हो एंड दौड़ रहे हो एक ही इंस्टेंस में, और तुम्हारे दिमाग में there are three thoughts running in different locations, and they are changing, but as the वो conscious subject जो है थर्ड सेट में, वो constantly observe कर रहा है। It's like that is constant, like the thoughts are changing, everything that is changing. Okay, so out of these three sets मैंने बताया कि फर्स्ट सेट इज चेंजिंग, सेकंड सेट इज चेंजिंग, थर्ड सेट में एक ही एलिमेंट है, कॉन्शियस सब्जेक्ट, that is not changing. Okay, now that is conscious subject. Now if I ask you, that is conscious, right? Abhi, okay, if I ask you one question now, what is the true nature of Harris? Harris has consciousness or Harris is consciousness, which is more accurate? आपने पहले भी कहा था Harris has consciousness. Okay, now but in अब वो Harris, वो आपने Harris को यानी सेट कह दिया, यानी अब आप ये कहेंगे he is a set then. No, in that Harris में I divided into three sets. Okay, पहले दो sets are changing constantly. Now third set में एक ही element है that is constant. Now now you need to honestly answer this question. Now which is more accurate? Harris has consciousness or Harris is consciousness? Which is more accurate? Now this is something. Harris has consciousness. Okay. So now when you say Harris has consciousness, now who is Harris? Is it set one, set two, or set three? No, it is all of them. He's all of them. But that's what I'm telling, which is more accurate. I not say which is false, which is more accurate, because first two are changing. Like I can see all are changing. Sir, all are changing. Sir, third one is constant, right? No, but our thoughts are changing too. Third was a collection of thoughts, yeah? Okay, so what was the third one? So what was the third one? Is a conscious entity which is experiencing those thoughts. That's why I told you conscious thoughts or conscious subject different hai. See, let's say you're eating an apple and listening to music at the same time. Yeah, but even consciousness, but even conscious thought, जो आपने conscious जो observe कहा ना, जो आपने बताया ना, conscious, yeah, जो आप कह रहे हैं कि consciousness is observing all those thoughts, there's a disagreement in that the thought itself is a consciousness or not. No, okay, that's what set 2 में, set 2 as वो आपने set 2 बनाया ना, सर आपने set 2 बनाया ना, are you thought of an apple or are you the experiencer of the thought of an apple? नहीं, let's not complicate the matter again. आके बात तो फिर वहीं पे आ जाती है, physical matter and the metaphysics, the thought. तो आपने इसमें इसको divide किया है, it still doesn't make any sense कि वहां से ये jump नहीं अगली मारी जा सकती कि who is Harris? Is he the body or is the thought? सर ये इसके ऊपर बड़ी आप third entity, thought, not thought, right? No, yeah, वो आपने जाती है, वो आपने जाती है. Both are same? Are you saying thought of an apple? I think they're both the same. The third and the second are both the same. So there are two Harris. There's apple ka thought or listen to music at the same time. No, that's not what I'm saying. No, that's not. Two Harris or one Harris?
That's not what I'm saying, because the No, thing is, there are two thoughts in your brain, right? So if you're saying thought is Harris, then there should be I'm two not, Harris in your I'm brain. not, There should, yeah, but there is only one no, Harris. listen to the logic that I'm giving you. ये नहीं मैं कह रहा आपको, आप जो कह रहे हैं कई the लोग first ऐसे होते हैं। first set है, maybe Ghalib you can do it because I can't deal with this anymore. जो first set आपने जो बताया, that's the physical aspect. The second aspect is the thoughts. The thought, now observing the thought. Are you saying that these two are different? I'm saying that maybe the ability to observe the thought itself is the same process. It's the same thing. That's what I'm saying. I don't know No, that. so that's what Ghalib, you take अच्छा, care of मुझे this. एक बात बताएं, मुझे नहीं पता इन भाई का नाम क्या है। आपने कभी शिजोफ्रीनिया का नाम सुना है? हाँ, यार सुना है। तो एक बंदे के अंदर 4-4, 6-6 पर्सनैलिटीज होती हैं। या वो कहाँ से आती हैं? क्या वो आत्मा होती है या फिर वो कोई बीमारी है जिसका ड्रग से इलाज हो जाता है? हाँ, एग्जैक्टली। सो आई एम कमिंग देयर। सो गालिब जी, तो मैंने एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब दें। आप उसे क्या समझते हैं? इज इट अ मेंटल इलनेस जिसका इलाज पॉसिबल है, या फिर आप समझते हैं कि वो कोई और प्रॉब्लम है? क्वेश्चन को हाँ मुझे बताएं, सिजोफ्रेनिया एक बीमारी है या इज इट समथिंग मोर? It's a disease. I mean, it's a disease which can be cured in future, I guess. यार हिंदी में बात करें भाई, यानी डिजीज है, क्योर कर सकते हैं। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली मतलब फ्यूचर में कर सकते हैं उसको। तो मुझे ये बात बताएं कि अगर एक बंदे को ये शक हो जाता है, या फिर एक बंदा जेन्युइनली उसका दिमाग इस बात पे आ जाता है, वो समझ लेता है इस बात को कि उसके अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज हैं, सबकॉन्शियसली उसको पता भी नहीं होता, एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज हैं, एक में वो अपने आप को अर्जुन कह रहा है, दूसरे में करण कह रहा है, तीसरे में राम कह रहा है, चौथे में सीता कह रहा है। तो मुझे बताएं कि ये बीमारी है या फिर ये कुछ और है? बताएं मुझे। ये बीमारी है, और क्या बीमारी है, ठीक है। तो आत्मा फिर उस बंदे की आत्मा किस वाली में है? वही ना, पहले आत्मा को डिफाइन करें फिर बाद में जा रहे हैं। अब एक मिनट, हाँ आपने आत्मा को डिफाइन कर लिया, मुझे अभी आत्मा को डिफाइन ना करें, मुझे ये बताएं कि उसकी आत्मा इन 7 पर्सनैलिटीज में से 6 में से 4 में से 2 में से किस में होती है? ओके, अकॉर्डिंग टू मी आत्मा एक ही है, पूरी कायनात में एक ही आत्मा है। अच्छा, आत्मा पूरी कायनात में एक है, इसका कोई सबूत है आपके पास, एविडेंस कोई? वही ना, इससे पहले आप आत्मा को डिफाइन करें, प्रूफ से उससे आगे नहीं जाएंगे। आप आत्मा को जो मर्जी डिफाइन करें, मुझे एक पॉइंट आया मेरे ज़हन में, गालिब एक मिनट पॉइंट आया जो भी आप एक सिंपल सर, एक सेंटेंस सर। एक बात है कि एक बंदे में 7 पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, और आप ये नहीं बता सकते कि इसकी आत्मा किस वाली में रहती है। आत्मा एक ही है, सभी है, 7 का एक ही आत्मा। मतलब मुझे ये बताएं, ये बात ये बताएं कि ये जो प्रॉब्लम ब्रेन का है, जो मैनिफेस्ट हो रहा है इधर, हाँ, ठीक है, बंदा क्यों अपने आप को 7 समझ रहा है या 4 समझ रहा है, 2 समझ रहा है, क्यों? वही ना, सो के उठता है तो वो बेचारा फीमेल होता है, सोने लगता है तो वो बेचारा मेल होता है। आत्मा इज एक्सपीरियंस, मैं वही बोल रहा हूं। एक बात है, यानी आप जिसको कह रहे हैं कॉन्शियसनेस, जो समझ रही है, जिसको अपना पता है, जिसको सारा कुछ पता है, ठीक है, वो एक ऐसी चीज है कि उसे यानी आप अब ये नहीं बता सक रहे कि उसकी कॉन्शियसनेस इनमें से किस में फंसी हुई है। सभी में है। नहीं भाई, चले ठीक है, आप कॉन्शियसनेस इज ऑब्जर्वर ऑफ ऑल द थॉट्स। सी देखो गालिब जी, मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे आप एक एप्पल के बारे में सोच रहे हो, राइट? आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे आप मेरे से ऐड कर लो, वो ऐड करें। हाँ, मैं अब ऐड करता हूँ। आप जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, जो 3 सेट्स थे, अब यहाँ पे 7 सेट्स हो गए हैं। इनमें से अब इसमें 4 न्यू, जो थर्ड सेट था वो 4 बन गए अब, क्योंकि दे आर ऑल ऑब्जर्विंग द थॉट्स सेपरेटली। You know, set 1 observing the sort of 4 personalities हैं। अब जो आप मुझसे पूछ रहे थे, which one is, अगर let's say मेरे में ये बीमारी है, तो आप फिर कहेंगे which one is Haris then? अब मैं आपका आर्गुमेंट सुनता हूँ, which one would be out of those 4 would be Haris? Exactly. So what I'm first, पहले हमने I need to differentiate between conscious thoughts and conscious. Okay, conscious thoughts और conscious thought अलग होती है, conscious subject अलग होते हैं, दोनों में अलग अलग होती है। ठीक है, आत्मा यूज करते हैं। I don't want to use आत्मा, but okay, let me use it. ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, but क्योंकि आत्मा it takes into religious and I'm an atheist, I don't want to use it, that's why. But okay, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आत्मा में बिलीव करते हैं without any observational evidence, no evidence, क्योंकि आत्मा सब्जेक्ट, आत्मा इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बता सकते हो? ठीक है, मैं एक बताता हूँ यार, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, या तो आप फिलॉसफी की बात कर लें, या आप जो है न्यूरोसाइंस की बात कर लें। देखिए जी, लेट्स से एक एलियन, आप दोनों चीजों को, साइंस और फिलॉसफी को मिक्स नहीं कर सकते। हाँ, नहीं साइंस आप नहीं कर सकते, आप कर रहे हैं। साइंस में बात कर रहा हूँ, साइंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक एलियन होता है, ठीक है, लेट्स समझे एक एलियन है जिसका एक ही है, जिसका
टंग ही है और कुछ नहीं, ही हैज ओनली टंग व्हिच इज वर्किंग, उसका आंख नहीं काम करती, जैसे ईयर्स काम नहीं करती, स्किन काम नहीं, कुछ भी काम नहीं करती, सिर्फ टंग ही काम करती है, ठीक है। नाउ लेट्स से उसमें तो आप स्वीट दिखाते हो, then okay, he will experience sweetness. If you put sugar, he can experience sugar, okay, so any experience he can experience, ठीक है। But let's say you are arguing with that alien, okay, let's say telepathically you are arguing because he doesn't have anything. Now you will say, you will say that alien की तुम्हारे पास टंग है, तो उसको दिखा सकते हो, क्योंकि टंग तो because he does not have any eyes, so देखने का टंग को, नहीं, he does not have rivers, very flawed. तो Okay, we have to wrap it up because I'm gonna say कि आपने जो analogy दी है, he's only got a tongue that's working. No, but does he so have how can you consciousness? prove? No, but does he have हाँ, consciousness? the- Does he now have the that- same यार, problem आप with लोग us? बड़े उसकी confuse matter लग रहे है, हैं असल में। No, आप how उसका can you prove matter that he has brain है। tongue? How can you नहीं, prove that he has tongue? उसको टंग देख कैसे दिखा सकते हो? नहीं, नहीं, but tongue जो है, वो He tongue is क्या he is कर रही है? arguing that he does not have any tongue. नहीं, He's asking you to show the tongue. कैसे दिखा रहे हो आप तुम उसको बताओ? सर, आपकी पता नहीं आप कहाँ पे फंसे चलो हुए हैं। ठीक आप है, मैं आपको चलें, बस आप एक आखिरी ठीक बात है, बता very देता हूँ भाई। कॉन्शियसनेस का ये हाल है कि अगर बंदे का दिमाग खराब हो जाए ना, उसमें 7 पर्सनैलिटीज आ जाएं, तो 7 हाँ डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटीज उसमें आ जाती हैं, हाँ ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी पहली पर्सनैलिटी है ना, वो भी इस दिमाग के अंदर ही रहती है, ये कोई हाँ, कहीं से नहीं आ रही, ठीक है। कोई नहीं आपके है, पास ना तो इस बात दिमाग का कोई नहीं है। एविडेंस है, नहीं नहीं एक मिनट, अब आप मुझे काटे ना, ठीक है ना। हाँ, ना तो आपके पास इस बात का कोई एविडेंस है कि हमारे अंदर कोई आत्मा है, कोई एविडेंस नहीं है, नॉट नथिंग एट ऑल, ठीक है। बिटवीन अ लिविंग बॉडी एंड नॉन लिविंग बॉडी सिर्फ ये फर्क है कि जो उसका दिमाग है, जो उसके बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं, वो फेल हो जाते हैं, बंदा मर जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई एविडेंस नहीं है आत्मा का, कुछ भी नहीं है, ना किसी साइंस की ब्रांच ने आज तक कुछ भी साबित नहीं किया, ठीक है। जितनी भी आप बातें कर रहे हैं, आपने 4-5 फिलोसफिकल जार्गन की बातें निकाली हुई हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉन्शियस बीइंग, नॉन कॉन्शियस बीइंग, ये सब कुछ आपने निकाला है। इसके अलावा आपकी बातों में ना, और मैं क्या कहता हूं हमेशा, फिलॉसफी सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल मैस्टरबेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है फिलॉसफी। मैं फिलॉसफी, जो कोई फिलॉसफर आ जाए मेरे साथ बात करे, मैं उसको हमेशा यही कहता हूँ, फिलॉसफी से कुछ नहीं निकलता, फिलॉसफी इज जस्ट इंटेलेक्चुअल बुलशिट और कुछ भी नहीं, ठीक है। जब तक आप किसी बात को साइंस के अंदर साबित नहीं करते, जब तक कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं दिया जाता कि हमारे अंदर कोई कॉन्शियसनेस जो है वो कहीं और से आई है, तब तक हम कभी भी नहीं मानेंगे, ठीक है। आप एविडेंस दे रहे हैं, हम मान लेंगे, मगर एविडेंस आपके पास नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। I have to wrap it up. चलें, लेकिन I'm really sorry, लेकिन this argument just doesn't appeal to us. पता नहीं आप क्यों इतना इंटरेस्ट में लेते हैं। I've told you this. ये आप, I understand. Maybe you are still, you can't see it from our point of view. Maybe I don't know. Maybe have a discussion with some neuroscientists or something. Please, I'm not interested in this kind of stuff. Okay, thank you. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।